Okay, today students we will discuss about the unit test 1 solution for physics. Now see in question number 1 and the A part and the sub part 1, it was given the opening of a water tap is an example of, and we were given these 4 options. So you can see opening of water tap is an example of, so our answer will be rotational motion. So this will be your answer for this part, opening of tap. Next we have a body is describing a uniform circular motion. Which of the following quantities will remain constant? So we have been given these 4 options: speed, acceleration, velocity, and then we have both A and B. Now remember, whenever a body is performing uniform circular motion, then the speed of the body remains constant. Okay, the next we have the third part. A rigid body is said to be in translational equilibrium. It is in translational equilibrium, means body moving in a straight line path. When its velocity is, again we have been given with the 4 options, either velocity is constant, velocity is 0, or it's both constant or 0, and neither A nor B. So remember, in this case our answer will be when the velocity is either constant or velocity is 0, we say that the body is in translational motion. Now moving on to the next part, we have a falling raindrop has only kinetic energy, only potential energy, both kinetic and potential, and none of these. Now remember, when it is falling, then it is falling with only kinetic energy. It has only kinetic energy because it falls with a constant velocity, so it has only the kinetic energy. In the fifth part, we have 1 kilocalorie is the amount of heat required to raise the temperature of. So here our option will be 1 kg of water through 1 degree. So you can say our answer for this part will be C1. This will be the definition for kilocalorie. Now here they say, what should be the angle between the direction of force and the direction of displacement to get the work negative, and that to maximum negative. Remember, it should be maximum negative, not only negative, maximum negative. So for maximum negative, you will say theta should be equal to 180 degree. Using this, if you find the work done, this will be Fs cos 180. This will give you Fs minus. So the work done will be negative and maximum. Now moving on to the next one. Name the physical quantity obtained using the formula U by H, where U is the potential energy and H is the height. Okay, U is the potential energy. If we write the formula for potential energy, it is mgh. Now we need U by H, so we will divide both sides by H. And dividing both sides by H, on the left side you are getting U by H, and on the right side it is mg. So the question says, what physical quantity does U by H represent? So U by H is representing mg. So where mg is, either you can say it is the force of gravity, or it is also known as the weight of the body, or you can say it is representing weight of the body.
Now here they say, what is the position of the center of gravity of a triangular lamina? So for a triangular lamina, the center of gravity position will be point of intersection of the medians. The point of intersection of the medians. That will be the position of center of gravity. Okay, now moving on to the next question, we have two balls. We have two similar balls. Balls are similar, are released from the top of a tower with same initial velocity. One is projected vertically upwards and other one downwards. Calculate the ratio of their speed when they strike the ground. Okay, let us consider this be the position from where the ball was released. Now the ball which was released in the downward direction here. Let's consider the ball. One ball was released in the downward direction. The other ball was released in the upward direction. Both are the similar balls and they were both released with same velocity. Let the velocity with which they were released be u. Now first of all, let us consider for the body which is traveling in the downward direction. Ball moving downwards. First of all, we will see for the ball which is moving downwards. So the velocity with which it was released from here, so initial is u. Okay, let the height which it travels up to the ground, let this distance be x. So distance, let it be x. Acceleration in it is equal to acceleration due to gravity. So from here you can get its velocity, with what velocity it is going to strike the ground. So you can say v square is equal to u square plus 2as, right? So v square is equal to u square plus 2gx. So the velocity with which it strikes the ground is root u square plus 2gx. Okay, now the second ball which was thrown in the upward direction, moving upward. Now see, the ball that was thrown in the upward direction, first it will move to the maximum height, whatever may be the maximum height, it will first move to its maximum height. Then at this height it will come to a momentary rest and then it will move in the downward direction. Now when it's moving in the downward direction, so when it reaches its initial position, the position from where it was thrown upward, so when it reaches to its initial position, its velocity will be u over here. See, for the ball that was moving in the upward direction, first it will reach to the maximum height, then from there it will return, and when it will reach to its initial position, then its velocity will be the same, the velocity with which it was projected. ये आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकी जाती है, जब वापस उसी पोजीशन पे आती है तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जिस वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है. तो जो बॉल ऊपर फेंकी गई थी उसकी वेलोसिटी थी u, तो जब वो वापस लौट के आई इसी पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी है u. अब ये यहाँ से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, देखिए. अब जब ये यहाँ से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी देखिए, जहाँ पे फर्स्ट बॉल थी, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी u जब वो नीचे जा रही थी. तो ये बॉल जो ऊपर गई थी जब ये वापस नीचे आई इसी पोजीशन पे तो इसकी भी वेलोसिटी u है ना. तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, u है. अच्छा, ये भी उतनी ही हाइट ट्रैवल करेगी जितना ये कर रही है.
x, इसमें भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा जितना फर्स्ट वाली बॉल में था। तो जब ये नीचे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वेलोसिटी भी सेम उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट वाली बॉल की थी। यानी कि जब दोनों बॉल्स ग्राउंड पे पहुंचेंगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो इन दोनों की वेलोसिटी का जो रेशियो हमें मिलेगा दैट विल बी 1:1। फिर से इस पे आप लोग ध्यान दे लीजिए कि बॉल ऊपर फेंकी गई थी इनिशियल वेलोसिटी u से, तो वो बॉल जब लौट के वापस उसी पोजीशन पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी u होगी। अब जब यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी u है, डिस्टेंस वही x है, एक्सेलरेशन वही है g है जो फर्स्ट वाली बॉल के लिए, सारे कैलकुलेशंस वही इसके लिए भी हैं। तो वेलोसिटी इसकी वही होगी जो फर्स्ट बॉल की थी। तो रेशियो विल बी 1:1। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए दो स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेक्शन वाला, उसमें कहा गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट is always lies at its geometric center। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। कैसे? आपको बता दें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर ओनली इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इरेगुलर शेप की बॉडी है और अगर उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तब आप बोल सकते हो कि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगी। पर कंडीशन क्या है कि वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की होनी चाहिए। यहाँ पे ये कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की है। तो दिस स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया। बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा ट्रू हो गया। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ये ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे हम तभी मान सकते हैं इरेगुलर शेप की बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये कंडीशन दे दी जाएगी कि बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, तभी, अदरवाइज नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 2 वेट्स 5 kgf and 7 kgf are suspended from the ends of a beam which is 5 meter in length। तो ये देखिए हम लोगों ने 5 मीटर लेंथ की ये बीम ले ली सपोज करिए, और इस पे 2 फोर्सेस लगी हैं एंड्स पे। तो एक फोर्स को इस एंड पे लगा दिया 5 kgf की, दूसरी फोर्स को हमने इस वाले एंड पे लगा दिया 7 kgf की। इस बीम की टोटल लेंथ है 5 मीटर। नाउ क्वेश्चन सेज these forces are balanced by a force F acting at C between A and B। अब A और B के बीच में कोई पॉइंट है C, मान लेते हैं ये पॉइंट है C। अब इस पॉइंट पे आप एक थर्ड फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप एक थर्ड फोर्स लगा रहे हो। मान लीजिए ये फर्स्ट फोर्स है, इसको सपोज करिए ये सेकंड फोर्स है, और अब पॉइंट सी पे आपको थर्ड फोर्स लगानी है। और ये पॉइंट सी कहाँ पे कर रहा है, लाई बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में हमने कोई भी एक पॉइंट सी ले लिया। अब कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड द पोजीशन ऑफ सी। अब देखिए ये जो भी पॉइंट है यहाँ पे 2 चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट सी पे 2 चीज़ें बैलेंस होंगी। अब वो कौन सी 2 चीज़ें बैलेंस हो रही है ये समझिएगा। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे आप जो है इन दोनों फोर्सेस का जो मोमेंटम है वो बैलेंस हो रहा है। मोमेंटम ऑफ P एंड मोमेंटम ऑफ Q वो इस पॉइंट C पे बैलेंस हो रहा है। अब इस पॉइंट C की हमें पोजीशन पता करनी है जिस पॉइंट पे
मोमेंटम बैलेंस हो रहा है। अब इस पॉइंट सी की पोजीशन हम एक काम करते हैं कि ये जो फोर्स पी है इससे इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x, और पॉइंट क्यू से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5 - x। ये देखिए टोटल डिस्टेंस 5 है ना, तो इधर का डिस्टेंस x मान लिया तो इधर का हो गया 5 - x। तो इधर वाला जो डिस्टेंस है x, ये f1 का डिस्टेंस है, तो सपोज करिए ये d1 हो गया आपका। ये वाला जो डिस्टेंस है 5 - x, ये सेकंड वाली फोर्स का डिस्टेंस है, तो ये d2 हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस का जो मोमेंट है वो इसी पॉइंट सी पे बैलेंस किया जा रहा है। तो हम पॉइंट सी की पोजीशन पता कर लें, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस किया जा रहा है। अब ये जो आपके पास फोर्स F1 है ये प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सी पे, और ये जो फोर्स Q है ये प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर इस पॉइंट सी पे इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट बैलेंस्ड है तो हम बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। चलिए ये लगा दें, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। तो F1 हमारे पास है 5, D1 हो गया x, F2 है हमारे पास 7, D2 हो गया 5 - 7। ठीक है, तो अब अगर हम इसको माइनस करें, सब ब्रैकेट खोलें और फिर सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 35 - 7x, तो ये हो जाएगा आपके पास 12x इज इक्वल टू 35। तो x इज इक्वल टू 35/12 मीटर में आ गया ये आपके पास। अब इसको अगर आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर हम इसको करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालें, ये हमारे पास आ जाएगा राउंड ऑफ करके 2.92 मीटर। इसका मतलब अब ये तो पता लग गया कि किस पॉइंट पे इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट बैलेंस होगा। पॉइंट सी हमें पता लग गया जहाँ पे इन दोनों का मोमेंट बैलेंस होगा। तो आप बोल सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.92 फ्रॉम फोर्स पी से अगर आप 2.92 के डिस्टेंस पे आपको मिल गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसी पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस भी बैलेंस की जाएंगी। अब आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे बैलेंस क्या क्या करना है। ये जो थर्ड फोर्स लगनी है उसने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना है, साथ ही साथ उसी पॉइंट पे जहाँ पे हम थर्ड फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का मोमेंटम भी बैलेंस होगा। तो हमने इन दोनों फोर्सेस का मोमेंटम कहाँ पे बैलेंस होगा ये तो निकाल लिया। अब इसी पॉइंट सी पे आप थर्ड फोर्स लगाओगे। अब वो जो थर्ड फोर्स होगी वो क्या करेगी, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों फोर्सेस का जो मोमेंटम है वो पॉइंट सी पे बैलेंस हो चुका है। अब जो मैं थर्ड फोर्स लगा रहा हूँ वो थर्ड फोर्स इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगी, इनके मोमेंटम को नहीं। इनके मोमेंटम ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है सी पे। अब पॉइंट सी पे जो थर्ड फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगी। तो आप ध्यान से देखो कि जो थर्ड फोर्स है वो इन दोनों के पैरेलल एंड ऑपोजिट लगनी चाहिए। तो हम जो थर्ड फोर्स लगाएंगे सी पे वो इनके पैरेलल और ऑपोजिट, ये देखिए ये हमारी थर्ड फोर्स हो जाएगी जो इन दोनों फोर्सेस के पैरेलल एंड ऑपोजिट। अब ये जो थर्ड फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रही है। तो आप बोल सकते हो F3 इज बैलेंसिंग F1 एंड F2। तो हमारा F3 कितना हो जाएगा, एक फोर्स है 5, दूसरी है 7, सो 12 kgf। तो यही आपसे पूछा गया था। आपसे पहले तो पूछा गया था कि थर्ड फोर्स कितने की होनी चाहिए, तो थर्ड फोर्स इन दोनों के सम यानी कि 12 kgf की होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा इन दोनों के। प्लस ये भी बताना था कि वो थर्ड फोर्स कहाँ पे लगे। तो उस थर्ड फोर्स को हमें उस पॉइंट पे लगाना होगा जहाँ पे इन दोनों का मोमेंटम बैलेंस हो रहा है। ओके,
समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप ये ध्यान दीजिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, हमको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस देना है किसके रेफरेंस में, डायरेक्शन के रेफरेंस में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड रेडियली मतलब अलोंग द रेडियस, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो भी सर्कुलर पाथ होगी उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। और जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड होती है। away from the center। ठीक, तो ये इस पार्ट का आंसर आपका हो गया। आगे मूव करें तो इसमें लिखा है राइट वन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अच्छा, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें वेलोसिटी वेरिएबल होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, और वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन यूनिफॉर्म, इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं UCM। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, इसमें वेलोसिटी वेरिएबल होती है। और आपको पता ही होगा वेलोसिटी क्यों वेरिएबल होती है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव करेगी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल है। तो वेलोसिटी इज वेरिएबल, सो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अगर आप इसको देखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो इसमें क्या होता है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, तो वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो हम बोलते हैं देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो इसमें वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनएक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज कॉल्ड अनएक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट, अगर आप इसका न्यूमेरिकल देखिए तो इसके न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है, बुलेट का सबसे पहले तो मास दिया है। तो यहाँ पे चलिए बुलेट का मास ले लेते हैं 0.1 kg। ये बुलेट मूव कर रही है विथ स्पीड ऑफ 200, तो ये इसकी इनिशियल स्पीड हो गई 200 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये एक टारगेट को पेनिट्रेट करती है, और जब टारगेट को पेनिट्रेट करती है तो ये कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, s 0.1 मीटर।
अच्छा, ये जब टारगेट को पेनिट्रेट करेगी तो आगे जाकर के ये रुक जाएगी, ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब हमें कैलकुलेट करना है केजीएफ में द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ब्लॉक। अब रेजिस्टेंस से हमारा मतलब है यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स, कि हमें पता करना है कि कितनी रेजिस्टिव फोर्स जो ब्लॉक है वो इसको ऑफर करेगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखिए कि जो बुलेट है वो जब टारगेट पे स्ट्राइक कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। भाई टारगेट पे जब उसने स्ट्राइक किया तो उसकी वेलोसिटी थी 200, और जब टारगेट के अंदर वो पेनिट्रेट कर गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए तो चेंज हो गई। काइनेटिक एनर्जी मोशन पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज हो गई। तो जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वही उसका वर्क डन हो जाएगा। तो हम ये निकालेंगे कितना वो वर्क करेगी इस वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करने में। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी वही उसका वर्क डन हो जाएगा। तो हम यहाँ निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी कितनी है, देखिए फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, तो ये टर्म तो आपका पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ बचा आपके पास माइनस हाफ m इंटू v², सॉरी u², तो 200 इंटू 200। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से वर्क आ जाएगा आपके पास नेगेटिव 2000 न्यूटन। ये नेगेटिव वर्क आ गया, ठीक। तो ये वर्क डन हो गया। तो ये जो वर्क डन हुआ है ये वर्क डन हुआ है ऑन द बुलेट, इसीलिए ये नेगेटिव वर्क आया, ठीक है। क्योंकि बुलेट तो मूव कर रही थी टारगेट के अंदर इस तरफ, लेकिन जो रेजिस्टिव फोर्स लग रही थी बुलेट के ऊपर वो लग रही थी उसके ऑपोजिट। तो एंगल बन रहा था 180 डिग्री का। तो अभी इसी क्वेश्चन पेपर में आपने किया कि वर्क डन नेगेटिव होता है, तो वर्क डन हमारे पास आया है नेगेटिव। अच्छा, अगर नेगेटिव वर्क है तो इसका मतलब जो फोर्स लग रही थी वो रिटार्डिंग फोर्स होगी। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया कि कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क है हमारे पास -2000, फोर्स आपको निकालनी है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.1 मीटर का। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए तो रिटार्डिंग फोर्स आ गई -2000 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो -20,000, और ये आ गई न्यूटन में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो ये रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है ये केजीएफ में निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको केजीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको ग्रेविटी की वैल्यू से डिवाइड कर दूँ। अगर मैंने इसको ग्रेविटी की वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास फोर्स जो है वो केजीएफ में आ जाएगी, देखिए। तो रिटार्डिंग फोर्स ये आपके पास हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स, तब हम माइनस साइन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैंने रिटार्डिंग फोर्स लिख दिया तो मुझे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रिटार्डिंग फोर्स है 20,000, ग्रेविटी आपको दे रखी है इस न्यूमेरिकल में 10, तो 10 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2000 kgf। हाँ, ये ध्यान रखिएगा अगर किसी न्यूमेरिकल में ग्रेविटी की वैल्यू ना दी जाए तो फिर आप 9.8 लेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं इस न्यूमेरिकल में 10 दे रखी है तो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर व्हाट हैपन्स टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इसका इतना भी आंसर दे देंगे तो वो करेक्ट माना जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स इंक्रीजेस।
potential energy of the proton increases. What type of energies are stored in the following? ट्रैवलिंग बुलेट, जो ट्रैवलिंग बुलेट है इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो तो काइनेटिक होगी, और साथ में अगर मान लीजिए हाइट भी होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बुलेट ज़मीन पे तो नहीं मारी जाएगी, तो अगर हाइट को भी हम कंसिडर कर लें तो अगर आप साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देंगे तो चलेगा। वैसे अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए तो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि बेसिकली उसके पास काइनेटिक ही है, क्योंकि उसका मास इतना कम होता है कि हम उसको इन कंपैरिजन टू काइनेटिक एनर्जी नेगलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम बात करें फूड की, तो फूड के पास होगी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड। ये था आपके पास सॉल्यूशन फॉर द यूनिट टेस्ट।